Assalamu alaikum everyone. I'm your instructor for the course Calculus of Variations and you know my name. My name is Salman Amin Malik. Well, आज हम 13th लेक्चर जो है Calculus of Variations का ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने सेकंड पार्ट जो है कोर्स का वो स्टार्ट किया हुआ है. Particularly we are discussing the generalization of Euler-Lagrange equations to the functionals which have two independent variables और एक dependent variable है and first up to first order of partial derivatives of that dependent variable. इसकी last lecture में हमने क्या किया था, हमने Euler-Lagrange equations जो हैं वो drive की थी and then I take two examples of certain functionals whose minimization or maximization surfaces are in fact the solutions of the partial differential equations और वो partial differential equations जो थी वो भी बड़ी specifically जो थी well known, I would say the well known second order partial differential equations थी. The one was the wave equation and the other was the Poisson equation. Poisson equation जो है mathematician Poisson के नाम से है. तो ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आई थी. इफ वी सॉल्व दोज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि पॉइसन इक्वेशन एक एग्जांपल में और दूसरे एग्जांपल में वेव इक्वेशन बनी थी, अगर हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो उनको सॉल्व करने से जो हमारे पास कर्व्स कर्व्स तो नहीं आएंगे क्योंकि phi will be a function of two variable जो surfaces आती हैं. These are the candidates to maximize or minimize the functional which were considered in those examples. तो आज के लेक्चर में हम उसी काम को एक्सटेंड करेंगे, which means कि we are going to discuss some examples, some difficult examples in today's lecture. याद रखिएगा कि हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमारे पास जो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस आ रही हैं वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर टफर टू सॉल्व. तो लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन ऑफ सर्टेन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लोग जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है एक ऐसा फंक्शनल डिफाइन कर देते हैं whose minimizer are the solutions of the partial differential equation. ये टेक्निक जो है ये बड़ी वेल नोन एंड वैलिड अप्रोच है. तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इन फैक्ट ट्राइज टू हेल्प to solve the certain partial differential equation और partial differential equation जो है ये physical phenomena को जब मॉडल किया जाता है, most of the physical phenomena are modeled by the partial differential equation. So it is very important to know about the solutions of the certain partial differential equations. लेकिन हमारे calculus of variations के केस में क्या है कि we have a functional, उस फंक्शनल के मिनिमाइजर जो है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है. अगर हमारे पास जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हमारा फंक्शनल जो है वो डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे along with one dependent variables and their first up to first order partial derivatives. Let's continue with the examples and see what we have in today's lecture. Today we are going to deliver the 13th lecture of Calculus of Variation. Let's go to the slide. So we are having the 13th lecture of Calculus of Variations, and as I told you that I am going to start with an example, और example जो है ये बड़ी physical example है. The example consists of find the surface of least area, the surface of least area spanned by a given contour. इस तरह के प्रॉब्लम हमने किए भी थे कि surface of revolution जो है वो हमने डिटरमिन करना था. This problem of finding the surface of least area spanned by a given contour, अब ये surface of revolution जो है ये ज़रूरी नहीं है कि x axis या y axis के about revolve किया है. This problem reduces to the
minimum of finding the minimum of the following functional, ये functional, इसका मतलब है कि there are infinite many candidates for phi x y, but we are interested in finding which makes this functional minimum. So I am going to compare this one. My f is 1 plus partial x square plus partial derivative with respect to y square. My Euler-Lagrange equations are, I know it, partial f over partial phi minus the first independent variable, which is x in this case, into partial f over partial phi x minus the second independent variable with respect to y, partial f over partial phi y equals naught. This will be my Euler-Lagrange equation. This is my Euler-Lagrange equation. This demands of finding partial f over partial phi. Since my f is independent of phi, so partial f over partial phi जो है वो तो मेरा 0 हो गया. अब partial f over partial phi x जो है ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर रूट में मेरा जो f है it also have the square root, that will be 1 by 2 square root of 1 plus phi x square plus phi y square, and the derivative of the inside. Inside I have 1 which is 0, phi x ka 2 phi x, then I will have 0 क्योंकि phi of y है वो, so partial f over partial x equals 2 से कैंसिल हो गया, phi of x divided by 1 plus phi x square plus phi y square. This is my one partial derivative. Similarly, I will have partial f over partial phi y जो है ये मेरा exactly on the same lines, that will be phi y divided by square root of 1 plus phi x square plus phi y square. So ultimately my Euler-Lagrange equations becomes this one, 0 minus partial over partial x into phi of x 1 plus phi of x square plus phi of y square minus partial over partial y phi of y over 1 plus phi x square plus phi y square equals naught. अब यहाँ पे आप देखें कि phi of x y ये भी फंक्शन है x का और डिनोमिनेटर ये भी फंक्शन है x का, तो I have to use the u over v formula. So partial over partial x, let me just give you the idea कि किस तरह आपने करना है. 1 plus phi x square plus phi y square, जब square मैं करूँगा इसका, the first function as it is, denominator as it is, square root of 1 plus phi x square plus phi y square, this is as it is, or phi of x का derivative with respect to x, that will become phi xx minus this numerator as it is, phi of x, and the derivative of this one. इसका derivative जो था वो हमने calculate किया हुआ है, that is phi x over square root of
1 प्लस फाई एक्स स्क्वायर प्लस फाई वाई स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इफ आई सिंप्लीफाई दिस वन, तो ये मेरा क्या बनता है 1 प्लस, यहां पे आप नोटिस करें कि ये जो है फाई एक्स एक्स, अब इसको जब मैंने पावर को किया है तो आगे जब मैंने आई एम इंटीग्रेटिंग टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ईच फंक्शन फाई ऑफ एक्स बी एक्स का फंक्शन है, फाई ऑफ वाई बी एक्स का फंक्शन है। सो आई विल हैव टू फाई ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं कर रहा हूं, और फाई ऑफ एक्स में फाई ऑफ एक्स कुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो मेरा 2 फाई ऑफ एक्स, आगे फाई ऑफ एक्स का, ये तो मैंने पावर को किया है, फाई ऑफ एक्स का फाई एक्स एक्स आएगा। सिमिलरली यहां पे प्लस 2 फाई ऑफ वाई फाई ऑफ एक्स वाई आएगा। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आप अब आप पार्शियली डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपका फाई ऑफ एक्स भी फंक्शन है एक्स का, फाई ऑफ वाई भी फंक्शन है एक्स का। तो जब आप फाई ऑफ एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, तो दैट विल बी 2 फाई ऑफ एक्स इंटू फाई एक्स एक्स। सिमिलरली जब आप फाई ऑफ वाई का लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, फाई ऑफ वाई स्क्वायर लेंगे तो 2 फाई वाई इंटू फाई एक्स एक्स एंड वाई, ये होगा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन यू विल हैव फाई स्क्वायर फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई स्क्वायर फाई एक्स एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स, एंड न्यूमिनेटर में आपका जो था 1 प्लस फाई एक्स स्क्वायर प्लस फाई वाई स्क्वायर, इसकी पावर 1 प्लस 1/2 3/2 बन जाएगी, एंड ये सब टर्म जो हैं सेकंड टर्म विद माइनस साइन, ये यहाँ पे आप लिखेंगे एंड यू विल सिंप्लीफाई दिस वन। ये भी एक पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये मैंने कैलकुलेट किया। सिमिलरली आप इसका भी करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, ये जो है ये आसान काम नहीं है अगर वेरिएबल्स जो हैं वो ज्यादा बन जाएं। तो जब आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है, टेक्निक क्या, जस्ट यू हैव टू यूज द फार्मूलाज ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल केयरफुली। ठीक है, तो जब आप ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन। आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो आपकी ये बन जाएंगी। अब आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस पिछली स्लाइड पे अगर हम जाएं, वहां पे तो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस पार्शियल डेरिवेटिव ये थे इक्वल 0। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें यू विल हैव दिस वन वेयर P जो है ये फाई ऑफ एक्स है, Q जो है ये फाई ऑफ वाई डिफाइन किया हुआ है, R जो है फाई एक्स एक्स है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये फॉर सिंप्लिसिटी जो है मैंने इस तरह डिफाइन कर दिया। लेकिन यू हैव टू वेरीफाई, प्लीज आई एम गोइंग टू राइट, प्लीज वेरीफाई फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड। पिछली स्लाइड से जो है ये प्लीज वेरीफाई करके आपने कि यही आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है ये बनती हैं। ठीक है, सो Euler-Lagrange equations becomes this one where S, T, all these things are like this. The formula for the mean curvature of the surface. अब प्रॉब्लम देखेंगे हमने मिनिमम सरफेस एरिया, ऐसी सरफेस डिटरमिन करनी है जो कि मिनिमम एरिया उसका हो और वो गिवन जो है सरफेस जो है उसको कवर करती हो।
The formula for the mean curvature of the surface is given by this one. ये formula है where m mean curvature equals 1 by 2 1 over x1 plus 1 over x2, or this is further equals e g minus 2f small f capital G small g 2eg minus f square, where EFG and capital EFG and small EFG are the coefficients of the first and second fundamental quadratic forms of the surface. Fundamental quadratic forms surface की क्या होती हैं? अगर surface का जो है equation जो है vector form में r into u v, u और v दो पैरामीटर्स हैं, कर्व्स हैं जो कि फर्दर में भी डिपेंड करते हैं, तो r u u ये एक वेक्टर है, r जो मैंने लिखा है ये वेक्टर है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट u ये फंडामेंटल, और ये नेक्स्ट स्लाइड में आएंगी भी कि फंडामेंटल जो है वो क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ द सरफेस है. इफ सरफेस इज गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट इक्वेशन, सरफेस अगर phi of xy, जैसे हमारे केस में वी आर लुकिंग फॉर phi of xy which minimizes this functional, ये अगर दी गई हो तो E equals 1 plus p square, और p हमारा क्या था, इसका मतलब है E क्या है, E will be equal 1 plus phi x square, F will be equals p into q phi x and phi y, and G will be equals 1 plus q, q जो है वो phi y है हमारा, phi y square. Similarly small e, small f and small g, यहाँ पे g होना चाहिए, g are given by these equations. r, s and t, r, s and t यहाँ पे ये defined है, these are the second order partial derivative over square root of 1 plus p square plus q square so on and so forth. ठीक है, ये तो फार्मूला था. ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी हुई है, ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री से है कि किसी सरफेस का जो है मीन कर्वेचर जो है वो क्या होगा. ओके, तो हमारा मीन कर्वेचर जो है वो क्या बन गया, हमने अगर phi इक्वल्स phi एक्स वाई एक्सप्लिसिटली सरफेस हमें दी गई है, तो हमारा मीन कर्वेचर विद दीज गिवन वैल्यूज जो कि पिछली स्लाइड पे थी, E, F एंड G और स्मॉल E, F एंड G की, उसको अगर मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं मीन कर्वेचर की इस इक्वेशन में जो इसके इक्वल है, यहाँ पे E, F, G की ये वैल्यूज जो हैं, अगर ये वैल्यूज सब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो आई विल हैव माय मीन कर्वेचर इक्वल्स दिस वन. अब मेरी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो तो ये हैं, which is, if you see carefully, r1 plus, which is the numerator of this mean curvature. अब ये numerator of mean curvature, इसका मतलब ये है कि if from my Euler-Lagrange equation I am having this equals 0, it means my mean curvature of the zero of the surface is 0, क्योंकि डिवीजन तो doesn't matter, ऊपर 0 आ गया तो mean curvature of my surface which minimizer my given functional जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया. The Euler-Lagrange of the problem was this one, और इसकी वजह से हमारा mean curvature जो है वो 0 आ गया. Here the numerator coincides with the left hand side of the Euler-Lagrange equations, hence the mean curvature of the required surface is equals 0. Mean curvature जो है वो 0 आ गया. Surfaces, so the conclusion is कि हमारा जो start हमने किया था problem वो इससे किया था, find the surface of least area spanned by a given contour. So the surface of
surface of least area spanned by a given contour should have mean curvature उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल्स 0। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, surfaces with zero mean curvature are called minimal surfaces, तो उनको हम कहते हैं minimal surfaces। अब ये जो जनरलाइजेशन है, ये हम एक और जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इस जनरलाइजेशन को हमने पहले जो है डिस्कस किया था एनालिटिकल डायनामिक्स के पर्सपेक्टिव में। ये पर्सपेक्टिव क्या था कि आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, यू हैव एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो आर एन आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनफैक्ट योर फंक्शनल could depend upon x, the independent variable, the y1, y2, and dependent variable and their first derivatives up to n। उन्हीं कर्व्स के n derivatives जो हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे फंक्शनल आपका डिपेंड कर सकता है। वे एज यूजुअल आपका जो है प्राइम जो है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल द कर्व्स पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स वाई आई ए इक्वल्स ए आई, वाई आई बी इक्वल्स बी आई। अब सपोज करें कि अगर ये आई कर्व्स जो हैं वो n इक्वल्स 5 हैं, तो ये इनफैक्ट ऐसे जो हैं ये आपके पास कर्व्स आ रहे हैं जो कि R6 के गिवन पॉइंट्स को इंटरपोलेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, दिस वन डिफाइंड ऑन द सेट of the set of smooth curves joining two fixed point in n plus 1 Euclidean space, यानी कि Rn plus 1 में अगर n equals 5 है तो R6 के पॉइंट्स जो हैं उनको ज्वाइन करने वाले कर्व्स जो हैं वो हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं बाय द मिनिमाइजेशन ऑफ दिस फंक्शनल। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अगर प्लेन में है हम R2 में है हम, यानी कि फंक्शन सिर्फ एक ही है y, जो हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि y ऑफ x पे और y प्राइम पे और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पे आपका f डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल, और ये फंक्शनल आपका सिर्फ एक y इनपुट कर्व है। तो दो पॉइंट्स A और B हमें दिए गए हों तो वी आर लुकिंग फॉर द पाथ और कर्व्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। इन अदर वर्ड्स अगर A और B के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही प्रॉब्लम हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर इसी को हमने जनरलाइज करना हो तो वी विल हैव दिस सिचुएशन जो कि आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग जियोडेसिक्स। जियोडेसिक्स जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही प्रॉब्लम को कहते हैं, लेकिन प्लेन में प्रॉब्लम नहीं होता वो। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आप सफियर पे बैठे हैं, ये सफियर है, ठीक है। अब सफियर जो है ये फ्लैट सरफेस नहीं है, मीन कर्वेचर इसका 0 नहीं है, तो आप जो है आप
एक पॉइंट पे बैठे हैं एंड यू वांट टू गो टू द अदर पॉइंट। अब सरफेस आपकी कर्व्ड है, देयर आर सो मेनी पाथ्स। फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरे सिटी तक आपने जाना है, तो देयर आर सो मेनी पाथ्स। दुनिया में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपने जाना है, लेकिन जियोडेसिक इज सच अ कर्व जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ऑन अ नॉन फ्लैट जो है सरफेस पे, ठीक है। तो geodesics are the one examples in which you have one independent variable and more than one dependent variables. The problem of finding geodesic that is shortest curves joining two points of some manifold, और manifold जो है ये generalization है plane की या 2D कोई भी। manifold is any surface which could be flat surface or non-flat surfaces, whatever it is. The same kind of problem arises in geometric optics. Optics में same kind of problem जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस भी करना है। In finding the paths along which light rays propagates in an inhomogeneous medium. अब ये जो inhomogeneous medium है ना, ये बड़ा important है। Most of the physical problems when modeled, they considered that the medium is homogeneous. लेकिन ये assumption जो है ये true नहीं होती। inhomogeneous medium क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप अर्थ कोई जो है डिग अप करना शुरू करें, तो ज़मीन में आपको सॉइल मट्टी के ज़रात भी मिलेंगे, मे बी आपको कार्बन भी मिले, मे बी आपको सॉल्ट मिले। तो अर्थ का जो ज़मीन को जो है ना वो मीडियम जो है दैट मीडियम इज़ इनहोमोजीनियस, ठीक है। मे बी आपको गोल्ड मिल जाए, मे बी आपको कोल मिले, मे बी साल्ट मिले, मे बी वाटर मिल जाए, तो इनहोमोजीनियस मीडियम इस तरह का होता है। तो सेकंड एग्जांपल क्या है कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में इनहोमोजीनियस मीडियम में लाइट जो है वो प्रोपोगेट किस तरह करती है। आपको पता है कि ये लाइट अगर जो है रोशनी जो है वो एक ऑप्टिक एक शीशे से भी अगर पास करे तो वो लाइट इंसिडेंट रे जो होती है और जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो थोड़ा सा बेंड होती है, उसको हम कहते हैं कि along which path the light passes. So in an inhomogeneous medium, how the light passes from that inhomogeneous medium, that is another example of the problem in which we are looking for the functionals which have independent variable as one variable but dependent variable जो है वो एक से ज़्यादा हों। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने करनी है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन एन इनहोमोजेनियस मीडियम, उसमें फॉर्मेट्स प्रिंसिपल जो है वो हम यूज़ करेंगे। फॉर्मेट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लाइट गोज फ्रॉम अ पॉइंट P0 to a point P1 along the curve for which the transit time of the light is the smallest. इस तरह का प्रॉब्लम ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम ये था कि अगर एक पार्टिकल को मूव किया जाए ऑन अ स्ट्रिंग अंडर ग्रेविटी ओनली एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वो किस कर्व के अलोंग सच दैट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। हमें क्या चाहिए था, मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। तो उस कर्व को y ऑफ x सच अ कर्व निकालें। इसको फॉर्मुलेट भी हमने किया था और सॉल्व भी किया था, तो ये हमने देखा था कि सोल्यूशन इसका साइक्लॉइड्स आते हैं।
तो फर्मेट्स प्रिंसिपल जो है इस एग्जांपल में हम यूज करेंगे। फर्मेट्स प्रिंसिपल सिंपली ये कह रहा है कि लाइट जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे उन कर्व्स के अलोंग पास करेगी वेयर इट टुक द स्मॉलेस्ट टाइम। स्मॉलेस्ट टाइम जो है वो जिस कर्व के अलोंग लगता है उस कर्व के अलोंग जो है लाइट पास करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इट्स द almost the same problem as we have brachistochrone problem of moving a particle from a point A to point B. Propagation of light in an inhomogeneous media. Suppose that three-dimensional space is filled with an optically inhomogeneous medium. ठीक है, दिस इज द मोस्ट जेनेरिक केस कि आपका थ्री डिमेंशनल स्पेस जो है वो इनहोमोजेनियस मीडियम से ऑक्युपाइड है सच दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एट ईच पॉइंट इज सम फंक्शन ऑफ वी एक्स वाई। Velocity propagation, how the light propagates from that inhomogeneous medium is given by v, x, y, z of the coordinates of that point. अगर स्पेस में कोई पॉइंट है x, y, z, तो लाइट ने अगर यहाँ से लाइट पास कर रही है यहाँ से, तो लाइट जब इस पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज गिवन बाय v, x, y, z, दैट इज सम फंक्शन। According to Fermat's principle, light goes from one point to another along the curve for which the transit time of the light is the smallest. If the curve joining two points A and B is specified by the equation, curve जो है वो इन equations से specified किया जा रहा है। In fact, आपके पास जो 3D में surface जो आ रही है वो Z या फिर U equals y and z है, and both y and z are the functions of independent variable x. The time it takes light to traverse the curve equals this one. जितना टाइम लगता है लाइट को उस कर्व p नॉट से P1 तक पहुंचने में along the curve which such that the time is minimum, उसका फंक्शनल जो है वो ये बनता है। अब ये आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फंक्शनल जो है इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y और z जो के पैरामीट्रिक इक्वेशंस कह सकते हैं हम ऑफ दैट कर्व है विच पासेस थ्रू पी नॉट एंड P1 सच दैट द टाइम इज मिनिमम, और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो दो हैं और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव b जो है उन पे डिपेंड कर रहा है आपका फंक्शनल। कैन यू राइट द आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस फॉर दैट फंक्शनल? आई पोज अ क्वेश्चन, कैन यू राइट the Euler-Lagrange equations for that functional? Of course, the Euler-Lagrange equations will be partial f over partial x y, क्योंकि dependent variable minus d over dx partial f over partial y prime equals naught. This will be the first Euler-Lagrange equation, and the second Euler-Lagrange equation will be partial f over partial z minus d over dx partial f over partial z prime equals naught. That will be the second Euler-Lagrange equation. अब आपका फंक्शनल क्या है? ये फंक्शनल है, यहाँ पे f क्या है? f ये कंप्लीट है, पूरा आपका f है। So you will have this one, f आपका ये फॉर्म कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय v ऑफ x y z। आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो मैंने अभी पीछे लिखी थी उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पार्शियल f
ओवर पार्शियल y, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, v मेरा फंक्शन है y का, ये न्यूमरेटर जो है ये तो फंक्शन है y प्राइम का, एक्सप्लिसिटली y का नहीं है, तो दैट विल बी माइनस partial v over partial y माइनस साइन विद माइनस साइन एंड -2 साथ आपके ये फंक्शन एज इट इज। दिस इज पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अब आइलर लैग्रेंज इक्वेशन के लिए आपको पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमने कई बार कैलकुलेट किया हुआ है इस तरह के एक्सप्रेशंस। दैट विल बी y प्राइम डिवाइडेड बाय 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर, ये होगा। अब नोटिस करें कि v जो है x, y और z का फंक्शन है, y प्राइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए मैंने v जो है वो एज इट इज रखा है। यहाँ पे u ओवर v फार्मूला नहीं लगा सकते हम, क्योंकि v फंक्शन है x, y, z का, प्राइम्स का नहीं है। एंड वी आर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम जो है ये पार्शियली हम कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे v जो है वो एज इट इज रखा है। सो माय फर्स्ट Euler-Lagrange equation will become minus partial v over partial y over v square into 1 plus y prime square plus z prime square minus y prime over v into 1 plus y prime square plus z prime square equals 0, and it's all with d over dx यहाँ पे, विच इज माइनस माइनस जो है ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस। दिस इज एग्जैक्टली द सेम Euler-Lagrange इक्वेशन विच इज रिटन हेयर। तो ये Euler-Lagrange इक्वेशन जो है इस तरह ड्राइव कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड Euler-Lagrange इक्वेशन के लिए मुझे पार्शियल f ओवर पार्शियल z कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली यही होगा कि z तो इसमें तो z है ही कोई नहीं न्यूमरेटर में, f के f जो है आपका प्लस z प्राइम स्क्वायर, तो सिर्फ मैं पार्शियल f और पार्शियल z ऑफ v रेज टू पावर -1 एंड v इज द फंक्शन ऑफ x y z, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये -1 पहले आएगा, v रेज टू पावर -2, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव वो पार्शियल v ओवर पार्शियल z बनेगा। और इसी तरह आप दूसरा जो है पार्शियल f ओवर पार्शियल z प्राइम जो है ये z प्राइम ओवर v स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर, ये आपका सेकंड जो है वो Euler-Lagrange इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। The solution of differential equation for the curves along which the line propagates is this one. We have to solve these system of ordinary differential equations. ये ordinary differential equations जो हैं ये देखते हैं कि easily solvable हैं भी या नहीं है, इनको simplify करना है। Let's see the complication, कि complication है क्या। अब आप imagine करें कि आपने इस dy ओवर dx, ये जो टर्म है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस सारे को कैलकुलेट करना है। भाई आपका y प्राइम जो है ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, आपका v जो है ये भी x, y और z पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो स्क्वायर रूट में ईच टर्म 1 तो कांस्टेंट है, y प्राइम जो है स्क्वायर ये भी डिपेंड कर रहा है, z प्राइम स्क्वायर ये भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपने d ओवर dx को कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है पहले आपको u ओवर v फार्मूला लगाना पड़ेगा इस पे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर जब आप इसका v का डेरिवेटिव लेंगे u ओवर v फार्मूले में, इसका न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल वंस अगेन लगाना पड़ेगा. सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो ये जो है ये जस्ट मैं आपको जस्ट रियलाइज ही करवाना चाहता हूं कि ये इजी टास्क नहीं है. और वो जो इक्वेशंस आएंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी. और नॉन लीनियर इक्वेशंस जो है बहुत मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज माय रिसर्च फील्ड एंड आई नो कि ये these are the problematic to solve the nonlinear partial differential equation. Next we consider an example of geodesics. Suppose we have a surface sigma. Sigma कोई हमारी surface है specified by a vector equation r equals u and v. So the geodesic is defined as the shortest curve lying on sigma and connecting 2 points of sigma is called the geodesic. ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी सरफेस है 3-dimensional सरफेस है या मैनीफोल्ड कोई है. Now we are not in 2D plane. Suppose we are sitting on a ball, sphere, in fact, and we have to move from one point to the other point. Of course जो है वो point यहाँ से आपने यहाँ तक move करना है तो वो जो है वो curve जो है वो may be यहाँ से there are so many possibilities. अगर आप sphere plot करना drawing भी यहाँ पे 2D में काफ़ी मुश्किल है. Okay, clearly the equations for the geodesics of sigma are the Euler-Lagrange equations of the corresponding variational problem. The first problem is कि आपने variational problem जो है वो construct करना है. That is the problem of finding the minimum distance measured along the surface sigma between 2 points of sigma. Sigma जो है कोई भी manifold है, surface है. A curve lying on the surface can be specified by the parametric equation. Surface के ऊपर जो curve है उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन से जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं. द आर्क लेंथ ऑफ द पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज t1. अब पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है जैसे हमें पता होता है कि पैराबोलिक अगर सर्कल है ऑफ रेडियस लेट से r जो है ये सर्कल है r में तो इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट हर पॉइंट x y जो है अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंसिडर करूं x एक्सिस यहाँ पे है y एक्सिस वी हैव हियर तो इसका जो है x और y दो कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि एक एंगल जो है थीटा जो है दैट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द ईच पॉइंट x and y on the surface and we know that x equals r cos theta and y equals r sin theta. So any point on the circle of radius r could be represented by r cos theta and r sin theta where theta जो है theta की रेंज क्या है theta from 0 to 2 pi है. अगर 0 पे होगा we are here, अगर 2 pi होगा we are here and in 0 to 2 pi के दरमियान एंगल्स जो हैं that will give you each point on the circle. Okay, तो this is the benefit of parametric equation. If जो हम geodesic का प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई एक सरफेस दी गई है सिग्मा जो है और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान शॉर्टेस्ट जो है डिस्टेंस हमने डिटरमिन करना है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो कर्व है ऑन द सरफेस सिग्मा जो है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो हमने सपोज कर ली है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं. तो अगर पैरामीटर्स जो है टाइम t1 और t2 के दरमियान पैरामीटर t इक्वल्स देन द आर्क लेंथ जो है इज गिवन बाय दिस वन. आर्क लेंथ जो है उसको इससे दिया जा सकता है वेयर E फंडामेंटल जो E कैपिटल F और G जो है ये
फंडामेंटल कोफिशिएंट्स, द फर्स्ट फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द सरफेस है। और ये डिफाइन किस तरह किया जाता है, ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में वी नो दैट कि दीज आर डिफाइंड बाय दीज एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या है कि आर जो आपको दिया गया है सरफेस इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, आर ऑफ यू मीन्स, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डी आर ओवर partial u. R of v means partial r over partial v. और ये E, F and G are defined by using these partial derivatives of the vectors. ये vectors जो हैं अब यहाँ पे bold मैंने बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, R bold लिखा हुआ है, या तो आप vectors के ऊपर arrow बना देते हैं, या bold letters जो हैं ये vectors हैं। अब ये अगर फंक्शनल है, यहां पे f हमारा क्या है, f डिपेंड कर रहा है t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल u, v एंड u प्राइम v प्राइम पे। तो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं, और रिमेंबर दैट कि अगर e हमारा इस तरह डिफाइंड है विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर्स r, और r मेरा अल्टीमेटली जो है u और v का फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि मेरा e जो है वो इनफैक्ट u v का फंक्शन है, मेरा f जो है वो भी u v का फंक्शन है, मेरा g जो है वो भी u और v का फंक्शन है। तो मेरा f ये है। अब आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस मैंने लिखनी है। आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के लिए मेरी इक्वेशंस, आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस क्या होंगी वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, partial f over partial u minus independent variable d over dt partial f over partial u prime equal 0। पहली तो ये होगी। दूसरी क्या होगी, partial f over partial v minus d over dt partial f over partial v prime equals naught। दूसरी इक्वेशन मेरी ये होगी। इसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पार्शियल f over partial u जो है वो स्क्वायर रूट का, तो हमें पता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग। आगे इस सारे का इनर जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। उसमें फर्स्ट टर्म में सिर्फ e वाला टर्म है जो कि u को कंटेन करता है, तो आई विल राइट e u प्राइम स्क्वायर। सेकेंड टर्म में मेरा सिर्फ f वाला टर्म है, आई विल राइट f ऑफ u प्राइम v प्राइम एंड सिमिलरली g ऑफ u v प्राइम स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आई नो कि ये मेरा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x होता है। तो पार्शियल फर्स्ट आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन पार्शियल ओवर पार्शियल f ओवर पार्शियल v जो है वो ये कैलकुलेट किया हुआ है। देन आई हैव टू कैलकुलेट पार्शियल f ओवर पार्शियल v प्राइम। अब आप नोटिस करें कि e जो है वो u और v का भी फंक्शन है, और e को डिफाइन किया गया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u से। तो इसका मतलब है कि e जो है वो u प्राइम का भी फंक्शन होगा, f जो है वो u प्राइम और v प्राइम का फंक्शन होगा, g जो है वो v प्राइम का फंक्शन होगा। तो whenever I will calculate partial f over partial u prime, I have to take care of these things। अब ये मेरा f है, u प्राइम जो है वो e में हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। That will be the derivative of this one।
डी ओवर डी टी। सिमिलरली आपकी जो सेकंड आइलर लैग्रांज इक्वेशन है, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से लिखी हुई है, आप पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू विल सी दैट दीज आर द इक्वेशन। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि डी ओवर डी टी एफ में भी u है एंड u डिपेंड्स ऑन t, तो ये अगर इन एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना पड़े, इट विल बी नॉट एन ईजी टास्क, आसानी से तो नहीं ये होगी, ठीक है। लेकिन हमने ये इक्वेशंस डिटरमिन कर ली हैं फॉर द जियोडेसिक्स ऑफ एनी सरफेस सिग्मा, ठीक है। अब पर्टिकुलर केसेस के लिए ये प्रॉब्लम जो है मे बी सिंपलर हो जाए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द जियोडेसिक्स ऑफ द सर्कुलर आर्क्स, सर्कुलर सिलेंडर whose equations are given by this one, where the variables phi and z play the role of u and v। अब जो पिछली एग्जांपल जो हमने जनरली की थी उसका एक पर्टिकुलर केस आ गया। E हमने इस तरह डिफाइन किया था, F हमने इस तरह डिफाइन किया था, अब R जो है वो हमें पर्टिकुलरली दे दिया गया है। सो वी कैन डिफाइन पार्शियल R ओवर पार्शियल U, और U मेरा क्या है, यहाँ पे फाई है, फाई पार्शियल R ओवर पार्शियल फाई मेरा क्या बन जाएगा, माइनस ए साइन फाई, ए कॉस फाई एंड z, तो फाई का फंक्शन है ही नहीं, z विल बी 0। तो आर यू मेरा, ई मेरा किस में ट्रांसफर हो गया, आर फाई डॉट आर फाई। सो आई कैन इजीली कैलकुलेट पार्शियल आर ओवर पार्शियल फाई, जो कि आर फाई है मेरा, उसका एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया। डॉट प्रोडक्ट से मैं ई जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट विल बी माई ई विल बी ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई एंड ई विल बी इक्वल्स ए स्क्वायर। यहाँ पे ई देख लें, ए स्क्वायर जो है वो लिखा हुआ। एफ जो है मेरा वो पार्शियल आर ओवर पार्शियल फाई डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी के है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल फाई मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी जो है वो क्या होगा, पहले कंपोनेंट 0, दूसरा कंपोनेंट 0, थर्ड कंपोनेंट 1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ऑफ कोर्स मेरा एफ जो है दैट विल बिकम 0। अब g जो है वो ऑफ कोर्स मेरा 1 आएगा, क्योंकि z इज द ओनली पार्शियल r ओवर पार्शियल z जो है ये क्या वेक्टर आएगा, 0 0 1, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसी से मैं लूंगा तो 1 ही आएगा। आइलर लैग्रांज इक्वेशन लास्ट जो है हमने स्लाइड पे फॉर एनी सरफेस सिग्मा जो है वो हमने ये ड्राइव की थी। ये सब तो 0 हो गया। अब u प्राइम, u की जगह क्या है, u की जगह फाई है और v की जगह z है। तो हमारा ये सारी इक्वेशंस जो हैं, ये वाली टर्म्स जो हैं ये तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमारा e इक्वल्स ए स्क्वायर है, तो u प्राइम स्क्वायर प्लस f जो है वो हमारा 0 है, g जो है वो हमारा 1 है। तो अगर हम ये पुट करें u और v तो हमारी ये टर्म्स 0 हो जाएंगी एंड आवर आइलर लैग्रांज इक्वेशंस बिकम्स दिस फॉर्म, d ओवर dt a स्क्वायर फाई प्राइम ओवर, क्योंकि f मेरा 0 है, e जो है मेरा a स्क्वायर है, u जो है वो फाई से रिप्लेस है, फाई प्राइम, e जो है a स्क्वायर है, फाई प्राइम स्क्वायर प्लस f 0 है, g 1 है, z प्राइम स्क्वायर इक्वल्स 0। एंड क्योंकि मेरा e जो है
ये डिपेंड ही नहीं कर रहा फाई पे, तो यहाँ पे तो ई यू है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, एफ मेरा पहले ही जीरो है, जी मेरा पहले ही कांस्टेंट है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो। सिमिलरली ई वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये जीरोज हो जाएंगी। तो आई विल हैव दीज Euler-Lagrange equations, two Euler-Lagrange equations for this one. अब एक तो वे ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर दें तो कांस्टेंट C1 आ जाएगा। ये ही हम करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर फाई प्राइम स्क्वायर प्लस z prime square equals let's say C1, और इसी तरह यहाँ पे भी C2 करके इंटीग्रेट करके then we will try to find out the solutions of these equations. The equations become C1 and C2 upon integration. अब इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल हैव फाई प्राइम ओवर जी प्राइम विच कुड बी रिटन एज डी जी ओवर डी फाई इक्वल्स स्मॉल C1 एंड स्मॉल C1 इनफैक्ट इक्वल्स आएगा आपका C2 ओवर C1 अगर आप रिगोरसली जो है वो करना चाहते हैं। इसका सोल्यूशन, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू फाई जो है इंटीग्रेट करें तो z इक्वल्स C1 फाई प्लस C2 where C2 is the constant of integration. This represents a two parameter family of helical lines lying on the surface on the cylinder. अब cylinder अगर ये हो, let me try to plot the cylinder. एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट दूसरा यहाँ पे हो, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि आप सरफेस के अलोंग हेलिक्स टाइप जो है मूव करते जाएं सरफेस के और अल्टीमेटली यू रीच दिस वन। सो मैथमेटिकली वी हैव प्रूव्ड दिस वन कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हेलिकल लाइंस हैं लाइंग ऑन द सरफेस। अब रिमार्क क्या है, ये बड़ा अच्छा रिमार्क है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और ये एग्जांपल जो आज के लेक्चर में हमने की हैं इसको प्लीज़ ज़रा देखिएगा। मैंने कुछ कैलकुलेशंस मिसिंग की हैं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द कैलकुलेशंस। ये जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमने जियोडेसिक्स वाला, आज के लेक्चर में इनफैक्ट दो जनरलाइजेशंस की हैं। एक तो पिछले लेक्चर वाली जनरलाइजेशन ही एग्जाम्पल्स कंटिन्यूड की और एक नई जनरलाइजेशन की है और उसकी एप्लीकेशंस की हैं जियोडेसिक्स पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोडेसिक्स कुड बी जनरलाइज्ड टू द हायर डायमेंशन। अब हायर डायमेंशन में 3D सरफेसेस से अगर 4D 5D या मैनीफोल्ड्स पे अगर हम जाएं तो मैनीफोल्ड्स आर द सरफेसेस इन द हायर डायमेंशनल, मैथमेटिशियंस उसे मैनीफोल्ड्स कहते हैं। उसमें भी जियोडेसिक्स का प्रॉब्लम जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, बट द ऑफ कोर्स द मैथमेटिकल डिफिकल्टी अराइजेस फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। ठीक है, तो मैथमेटिकल डिफिकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है और जियोडेसिक्स का प्रॉब्लम जो है ये very interesting problem है which we have discussed today. We are at the end of our lecture. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने enjoy किया होगा। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो सब्जेक्ट a little bit difficult होता जा रहा है। There are more and more calculations are involved in this. I will suggest you that you should be prepared for the next lectures in which we are going to discuss more rigorous mathematical and generalizations of the previous concepts. Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.